Hello students. So we were on radicals. So this is extension of radical rationalization. What does it mean? Normally we avoid to write down any radical sign in the denominator. So that process is called rationalization. So for example, we have 2 radical 3. So this radical 3 is in the denominator. We need to remove this from denominator normally. So it's a very simple process, nothing to worry about. If you have this one, then you just need to divide and multiply by the denominator. If you are doing so, ultimately this radical 3 gets cancelled with radical 3, so we are making no change at all. So, but we do not need to cancel here. We will multiply numerator with numerator, so this will multiply, this is 2, ultimately here coefficient is 2, so 2 radical 3 and denominator radical 3 into radical 3. So this will become equal to 2 radical 3 over the pair of 3, 1 comes out. So this is without your radical sign. Very simple one. Whatever is in the denominator, you just need to multiply and divide with the radical value. That will be free of your radical sign. The denominator will be free of your radical sign. So it's very simple one. The other thing is, suppose we have 2 over radical 2 plus radical 5, suppose. If this is the case, then in this case little change is there. You need to divide and multiply with a denominator, but with smaller change. Radical 2 minus radical 5 over radical 2 minus radical 5. Here it is plus in between. You just need to replace the sign. If it is plus, you need to minus. Write down minus. If it is here minus, you just need to write down in both over here plus sign. Nothing else. Now you will multiply the numerator with numerator. So 2 radical 2 minus 2 radical 5. Because this 2 will be multiplied with this one and 2 with radical 5 as well. Now this radical 2 into radical 2, ultimately 2 will come outside. This plus minus 2 radical 5. Sorry, it will be radical 10 because both are inside. Then plus it will be plus. We have multiplied with radical 2 only. Now with radical 5. Radical 5 into radical 5, it will be radical 10. Plus minus, it will be minus. Then radical 5 into radical 5, ultimately 5 will come outside. So minus radical 10 plus radical 10 gets cancelled. This is 2 radical 2 minus 2 radical 5 over 2 minus 5, it will be minus 3. So again minus in the denominator, avoid this one. This minus should be minus 2 radical 2 and this will be plus 2 radical 5 over 3. This will be your final answer, and it is free, your denominator is again free of your radical sign. So this is called rationalization. Now यहाँ पर जो हम 2 radical 2 plus radical 5, इसका जो अपोजिट यहाँ लिख रहे हैं, ठीक, इसको नॉर्मली हम एक और वर्ड कहते हैं कॉन्जुगेट. ये कॉन्जुगेट है इसका, यानी अगर ये प्लस है तो यहाँ हमने माइनस रखा लेकिन वैल्यूज वही है. अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ दोनों में हम प्लस रखते, ये उसका कॉन्जुगेट कहलाता. सो दिस इज हाउ you can rationalize
कि किस तरह से हम डिनोमिनेटर में से रेडिकल साइन को ख़त्म कर दें. होप you must have understand this one. Now next one is your bracket operations. When two brackets are there or even more and there is no any sign in between, that means these brackets are multiplying with each other. So how to do this one? इसमें हम सिंपल ये करते हैं कि एक ब्रैकेट को ओपन करते हैं, एक को क्लोज ही रखते हैं. अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली क्योंकि बिकॉज यू पीपल आर वेरी बिगनर्स एंड यू डोंट नो, you don't have the, most of the students don't have the mathematical background because of the inter-commerce and pre-medical. So what we have to do कि हम इस ब्रैकेट को खोल रहे हैं. खोलने का मकसद क्या है मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि ये a बेसिकली c से अलग मल्टीप्लाई होगा और ये a आपके माइनस डी से अलग मल्टीप्लाई होगा. फिर इसी तरह से b आपका c से मल्टीप्लाई होगा और यही b आपका माइनस डी से भी मल्टीप्लाई होगा. ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव टू से कि a को हमने लिया, हम पहली ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं a एंड देन राइटिंग डाउन c माइनस डी. ठीक, देन प्लस b इज देयर, सो साइन के समेत प्लस b और फिर वही c माइनस डी. तो आप देखें a इंटू सी, ए सी, ये वही हो गया. फिर प्लस माइनस माइनस a इंटू डी, वही हो रहा है ए डी. प्लस 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 b इंटू सी, बी सी, प्लस माइनस माइनस b इंटू डी, बी डी, ये होगा. सो दिस इज, इनमें से कोई भी चीज़ आप कैंसिल नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज़ जस्ट सिंपल वन, मैंने आप लोगों को दिया है. लेकिन अगर इसी तरह से अगर हमारे पास सपोज कि इस तरह से कोई आ जाए चीज़ कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सपोज वही चीज़ आपको करनी है कि इस फर्स्ट वाली ब्रैकेट को ओपन कर दें, a इंटू ए प्लस बी. यहाँ क्या है माइनस बी इंटू वही a प्लस बी, a इंटू ए स्क्वायर, प्लस 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 a इंटू बी, ए बी, माइनस इंटू प्लस माइनस b इंटू a, इट विल बी ए बी, माइनस प्लस माइनस b इंटू b, इट विल बी b स्क्वायर. सो प्लस ए बी माइनस ए बी गेट्स कैंसल्ड, आंसर इज a स्क्वायर. डोंट राइट दिस प्लस, ये प्लस इसके साथ है, b स्क्वायर के साथ क्या साइन है माइनस, सो माइनस बी स्क्वायर. दिस विल बी योर फाइनल आंसर. नाउ आई एम जस्ट मूविंग अहेड. पहले मैंने 2 बाई 2 यानी हर ब्रैकेट में 2 एलिमेंट्स थे, यहाँ मैं थोड़े ज़्यादा लिख रहा हूँ. एक ब्रैकेट में मैंने वही 2 रखे हैं और दूसरे में मैंने 3 एलिमेंट्स रखे हैं या 3 टर्म्स रखे हैं. वही है, आप कोशिश करके स्मॉलर ब्रैकेट को ओपन करें, जिसमें कम टर्म्स हों उसे ओपन करें. तो a प्लस बी 2 हैं, तो हम a को ओपन करके फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करके a इंटू सेकेंड ब्रैकेट कम्प्लीटली a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. फिर प्लस b है, ये प्लस b और फिर वही सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज. नाउ मल्टीप्लाई a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस माइनस माइनस a इंटू ए बी, सो a स्क्वायर b, प्लस 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 a इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, प्लस 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 दिस विल बी b इंटू ए स्क्वायर, सो a स्क्वायर b, प्लस माइनस माइनस b इंटू ए बी, a एज इट इज b इंटू b, b स्क्वायर, सो a b स्क्वायर, प्लस 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 b इंटू बी स्क्वायर, b क्यूब्ड. ठीक, नाउ माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी कैंसल्ड, प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड. दिस इज ए क्यूब. अगेन यहाँ बी क्यूब, उसकी साइन लेनी है, नॉट दिस वन. मोस्टली गलती कर देते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाते वक्त ये साइन लेते हैं. नो, यू हैव टू राइट डाउन द साइन ऑफ बी क्यूब के साथ क्या है, सो प्लस बी क्यूब. दिस विल बी योर सॉल्यूशन ऑफ दिस वन. होप कि ये ब्रैकेट्स के ऑपरेशन आपको समझ में आ गए होंगे.
सो नथिंग इज देयर, वेरी सिंपल वन, कि ये ब्रैकेट्स ये इसी तरह है कि यूं समझें कि ये टीम 1 है और ये टीम 2 है, ठीक। तो दोनों को अगर देखते हैं कि एक मैच होता है तो मैच से पहले उन दोनों के दरमियान हैंडशेक किया जाता है। तो हर मेंबर हर एक से, यानी ये अगर टीम का मेंबर है तो हर एक से हैंडशेक कर रहा है, ये इट इज़ लाइक दैट वन के हैंडशेक हो रहा है। ये दूसरा मेंबर है तो ये हर एक से। सो वंस यू आर डूइंग दिस वन, सेम वही है जो आप कॉमन डे लाइफ में करते हैं, नथिंग इज चेंज। हमेशा इसी रूल्स को फॉलो करें जो हम कॉमन डे लाइफ में करते आ रहे हैं, नथिंग इज डिफरेंट। वही मैं बार बार आपको कहता हूँ कि मैथमेटिक्स कोई एलियन की ज़ुबान नहीं है, एलियन का सब्जेक्ट नहीं है, इसकी कॉमन सी चीज़ें हैं, वही सब चीज़ें हमारे ऑन डे लाइफ के अंदर अवेलेबल हैं। वी जस्ट नीड टू फोकस और रिजेंबल करना है हमें कि कैसे ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। सो होप द ब्रैकेट्स ऑपरेशन मस्ट बी वेरी मच क्लियर टू यू पीपल। सिर्फ अब एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, किसी भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन है तो अंदर वाली साइन सब चेंज हो जाएंगी। अगर माइनस है अंदर तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस होगा। माइंड दिस थिंग कि किसी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो अंदर की साइंस सब चेंज हो जाएंगी। प्लस के साथ कोई ऑप्शन नहीं है, प्लस के साथ आपका एज इट इज वही रहेगा, प्लस के साथ कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जो साइंस होंगी ब्रैकेट की वही रहेंगी। देखें यहाँ प्लस है ए के साथ तो यहाँ पे प्लस है, ए स्क्वायर हुआ, यहाँ प्लस है तो बी के साथ भी ए बी हुआ तो प्लस ही हुआ। लेकिन यहाँ अगर माइनस है तो ए के साथ प्लस था लेकिन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस था फिर भी वो माइनस हो गया। इसी तरह अगर हम आ जाएं यहाँ पर तो यहाँ तो हमें वही मिल रहा है, देखें कि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर की साइंस वही रहेंगी। देख लें ये प्लस था वो प्लस ही रहा, ये माइनस था माइनस ही रहा, ये प्लस था प्लस ही रहेगा। सो इन छोटी छोटी चीज़ों को सिंपली आप लोगों को जहन नशीन करना है और एज अ प्रैक्टिस करनी है तो कोई इशू नहीं होगा। बाकी के जितने भी रूल्स हैं जो मैंने 5-7 पहले रूल्स बताए थे फंडामेंटल, उन्हीं के ऊपर चल रही है। नथिंग इज चेंज, नथिंग इज न्यू। होप this should be clear to you people now. ये मे भी काफ़ी स्टूडेंट्स को पता हो लेकिन कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। मोस्टली जो मेरा एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स की तरफ से ये जवाब आता है कि स्क्वायर मीन्स, मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी नहीं कर रहा, ठीक। मोस्टली जो जवाब आता है स्क्वायर मीन्स डबल करना। तो पहले तो चीज़ ये है कि स्क्वायर का मकसद कतन भी डबल नहीं है, क्योंकि 4 का डबल क्या होगा 8, लेकिन 4 का स्क्वायर 16 होता है। सो माइंड दिस थिंग। एक जवाब तो ये आता है कि स्क्वायर का मकसद है डबल करना। नो, नेवर एट ऑल। स्क्वायर का मकसद है उतने ही टाइम्स। 4 है तो 4 टाइम्स, 9 है तो 9 टाइम्स, 100 है तो 100 टाइम्स होगा, ठीक। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा ये होता है कि स्क्वायर रूट में मोस्टली स्टूडेंट्स का जवाब होता है कि वैल्यू को शॉर्ट करना, छोटा कर देना, कम हो जाती है, स्क्वायर के साथ बढ़ जाती है वैल्यू और स्क्वायर रूट के साथ कम हो जाती है। तो ये भी जवाब मोस्टली स्टूडेंट्स का एक कॉन्सेप्ट गलत है। मैं इसको साबित कर रहा हूँ कि देखें, अगर हम 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो नो डाउट ये 9 हो जाएगा, ठीक। लेकिन इसी जगह अगर हम 1/4 है या 1/2 सपोज, ठीक, इसको स्क्वायर कर रहे हैं तो ये 1/4 हो जाएगा। अब 1 के 2 हिस्से और 1 के 4 हिस्से, तो अल्टीमेटली यानी एक अगर आपके पास चीज़ है उसके 2 हिस्से करेंगे और एक ही उसी चीज़ के 4 हिस्से करेंगे तो डेफिनेटली 4 हिस्सों वाला छोटा हो जाएगा। तो हमने स्क्वायर किया तो ये वैल्यू स्मॉलर हो गई, यहाँ हमने स्क्वायर किया तो ये वैल्यू इंक्रीज हो गई। इसी तरह से अगर हम आएँ
कि ये 25 है आपका, 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो अल्टीमेटली ये 5 होगा, ठीक, बिल्कुल कम हो गई। लेकिन 1/4 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो ये 1/2 हो जाएगा। यहाँ मैंने आपको बताया कि 1/2 इज लार्जर देन 1/4 या 1/4 इज स्मॉलर देन 1/2। तो यहाँ देखें कि 25 में से 5 यानी स्मॉलर हो गया बिल्कुल। 1/4 का स्क्वायर रूट निकाला तो 1/2 वो ग्रेटर हो गई, बढ़ गई उससे वैल्यू। सो दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी कॉमन टू द स्टूडेंट्स, जो नीचे से आप लोग ये कॉन्सेप्ट्स लेकर आते हैं। उसी हिसाब से मैंने ये आप लोगों को दिखाना है कि नेवर से कि स्क्वायर का मकसद है कि वैल्यू इंक्रीज होगी हमेशा और स्क्वायर रूट का मकसद है कि वैल्यू डिक्रीज होगी। नो, नॉट एट ऑल। ये वेरी करता है कि हमारे पास वैल्यू क्या है, वैल्यूज के हिसाब से हम लोग तय करते हैं। तो फिर फर्क क्या है? इट्स अ वेरी सिंपल वन, वेरी सिंपल वन। यू जस्ट नीड टू अटर कि बाबा हमें 3 का स्क्वायर करना है किसी भी नंबर का, सपोज 8 है, इसका स्क्वायर करना है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर मीन्स पावर 2 दे देते हैं। और अगर हमें 16 का स्क्वायर रूट निकालना है तो हम पावर 1/2 देते हैं। इट्स सिंपल वन। स्क्वायर मीन्स टेकिंग पावर 2 और स्क्वायर रूट मीन्स टेकिंग पावर हाफ, आधा, 1/2। इट्स अ वेरी सिंपल वन। यही डिफरेंस है स्क्वायर और स्क्वायर रूट के दरमियान, कि स्क्वायर का मकसद है कि पावर 2 हो, स्क्वायर रूट का मकसद है पावर 1/2 हो। अब ये रूट वैल्यू कोई भी हो सकती है कि सपोज आप 4 का क्यूब कर रहे हो या आप 27 का क्यूब रूट यानी 1/3। तो ये क्यूब रूट ये होगा, क्यूब का मकसद है पावर 3 लेना, क्यूब रूट का मकसद हो जाएगा पावर 1/3 लेना। तो ये कोई भी पावर और कोई भी रूट हो सकता है। सो नथिंग टू वरी अबाउट, जस्ट यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है स्क्वायर करने से और स्क्वायर रूट करने से डिक्रीज। नो, दिस इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट, माइंड दिस थिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आई हैव। बेसिक ये चीज़ हो गई। अब आपके कुछ फार्मूले हैं वो मुझे डिस्कस करने हैं, उसके बाद आपकी लीनियर इक्वेशंस और आगे के एडवांस टॉपिक्स आते जाएंगे। तो यहाँ फार्मूलों के बाद आप लोगों का जो फाउंडेशन लेवल है, वो जो एक्सक्यूजेज हैं काफ़ी स्टूडेंट्स के कि हम लोग मैथ्स नहीं पढ़कर आए, हमें मैथ्स नहीं आती और मैथ्स हमें समझ में नहीं आती, उनके लिए ये मैंने पूरा सेशन आपका फाउंडेशन का रखा हुआ है। तो ये फाउंडेशन जो मैट्रिक लेवल तक है वो मैं आप लोगों को फार्मूलों तक ले आता हूँ। फार्मूलों के बाद आपका बाकायदा से वो एक स्टेटस के ऊपर कि कोई प्री इंजीनियरिंग का है, कोई कॉमर्स का है, कोई कंप्यूटर का है, कोई मेडिकल का है, नो इशू अबाउट दैट वन, किसी का कोई फ़र्क नहीं है। इसके बाद का जो टॉपिक है फार्मूलों के बाद आपका क्लियर हो जाएगा फाउंडेशन के बाद में आपको आगे जो एडवांस टॉपिक्स हैं उनके ऊपर चलते जाएंगे हम लोग। फार्मूला सिंगुलर है, फार्मूला प्लूरल हो जाएगा, फार्मूले, माइंड दिस वन। क्यों इस्तेमाल करते हैं फार्मूला हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? वेरी सिंपल वन, कि ये शॉर्टकट्स हैं, डायरेक्ट हम कुछ भी कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम पूरा मेथड अप्लाई करें। चंद फार्मूले हैं, उन फार्मूलों को लेकर हम शॉर्टकट के तौर पर अपने कैलकुलेशन को, अपने टाइम को बचा देते हैं। हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती क्योंकि वो यूनिवर्सल फार्मूले हैं, यानी वो कहीं पर भी आप फिट करेंगे उसी रूल के तहत चलेंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो नीचे आप लोग जो पढ़कर आए हो, मैं थोड़ा सा बाकी लोगों के लिए थोड़े हटके में ज़रा लिखता हूँ, तो वो मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूँ। सपोज फर्स्ट वन हमारा आता है x² - y²। इसको हम नाम देते हैं डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। डिफरेंस का मकसद है माइनस करना, यानी दो स्क्वायर्स के दरमियान फर्क, तफावत। तो ये एक के प्लस साथ है, एक के साथ आपका
माइनस है, इसीलिए ये दो स्क्वायर्स के दरमियान डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन का है, तो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, ये नाम है इस फार्मूले का। अब इस फार्मूले में नॉर्मली आप लोग सीख कर आए हो कि जिनको प्री इंजीनियरिंग आती है या जिनको फार्मूले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई, हमेशा यही जवाब आएगा। अब ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करेंगे, वापस हमारे पास ओरिजिनल चीज हमारे पास आ जाएगी। नाउ ये कैसे है, मैं इसको बाय वर्डिंग आप लोगों को लिखता जा रहा हूं और फिर समझाता जा रहा हूं। करना क्या है आपको कि स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, तो ये फर्स्ट टर्म है आपका, ये सेकेंड टर्म है आपका, ठीक। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा एक्स, वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा वाई, तो स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। बाद में मैं आ रहा हूं इस सॉल्यूशन की तरफ, पहले मुझे कंप्लीटली लिखने दें। पुट इनटू टू ब्रैकेट्स, वन नेगेटिव अदर पॉजिटिव, बस। अब करना क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, तो हमने एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स, वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट वाई, पुट इनटू टू ब्रैकेट्स, दो ब्रैकेट्स में एक्स और वाई, यहाँ भी एक्स वाई हमने लिख दिया, पुट इनटू टू ब्रैकेट्स, क्या ये जो हमने स्क्वायर रूट निकाले एक्स वाई, वन नेगेटिव अदर पॉजिटिव, एक के साथ नेगेटिव साइन एक के साथ पॉजिटिव साइन, सिंपल इज दिस वन। तो इसका एग्जांपल क्या है कि देखें, अगर हमारे पास 25x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर है, देखिए मैंने क्यों आपको कहा कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट का डिफरेंस, वो सिर्फ इसीलिए मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया कि ये 25 आपका स्क्वायर है, 9 आपका स्क्वायर है, x के ऊपर स्क्वायर है, y के ऊपर स्क्वायर, और बीच में in between there is minus sign, that means it qualifies this one, difference of two squares, difference of two squares है means आप लोग अब इस फार्मूले के तहत इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। सिंपली आपको करना क्या है, this one स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, तो 25x स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा 5x, 9y स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा 3y, पुट इनटू टू ब्रैकेट दैट इज 5x और 3y, वन नेगेटिव अदर पॉजिटिव। अब ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव फर्स्ट के साथ हो या सेकंड के, वो फ़र्क नहीं है, वो आपके ऊपर है, कोई भी ब्रैकेट नेगेटिव कोई भी पॉजिटिव हो सकती है, नो इश्यू। सो इस तरह से अगर हमारे पास, अब ये फार्मूला कहाँ से आ रहा है, नॉर्मली ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर रखा, अब ये यूज़ किधर हो रहा है, अक्सर आप लोग पूछोगे कि ये तो यहाँ से तो ये बढ़ गई चीज़, सिंप्लीफाई तो नहीं हुआ, तो अगर थोड़ा सा पीछे जाएं, जो रैशनलाइजेशन अभी मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था 2-4 मिनट पहले, तो वहाँ पर इसका यूज़ है। ना भी हो तो भी अगर आपके पास सपोज कि आपके पास आ जाए 2x माइनस 4y एंड 2x प्लस 4y, यानी टर्म्स वही हैं 2x 4y, एक के साथ माइनस दूसरे के साथ प्लस, इसको दो ब्रैकेट्स वाले तरीके से सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों को अब ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर फार्मूला मौजूद है। आप बगैर मल्टीप्लिकेशन के पहले का स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर हो जाएगा, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, और 4y स्क्वायर का माइनस 16y स्क्वायर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, नो इश्यू। तो ये शॉर्टकट्स हैं, बजाय इसके कि हम मल्टीप्लाई करते दो ब्रैकेट्स को, फिर कैंसिलेशन होती और फाइनल हमारा ये आंसर आपको, हम डायरेक्ट फार्मूले की मदद से इसको सॉल्व कर रहे हैं बगैर किसी एफर्ट्स के, क्योंकि हमें पता है कि ये यूनिवर्सल फार्मूला है। ऐसे कहीं भी कंडीशंस आ जाएं कि दो टर्म्स वही हों और ब्रैकेट्स में एक के साथ माइनस दूसरे के साथ प्लस है, तो हम ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स का फार्मूला लगाकर डायरेक्ट हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ आ सकते हैं।
अब एक चीज नोट कर लो आप लोग के, अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो, हमारे पास कोई भी इन दो स्क्वायर्स की एडिशन वाला फार्मूला नहीं है। ऐसा ना हो कि आप इस माइनस वाले को लेकर और प्लस वाले को एक ही रखो। नो, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का मकसद है माइनस, प्लस के साथ हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है इस तरह से इस कंडीशन में। बाकी तो हैं लेकिन प्लस का मकसद कि इस तरह से कोई हमारे पास नहीं है, तो इसको इससे हट कर रखें। और दूसरी चीज, सपोज एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ, वो लिखकर मैं आपको बता रहा हूँ कि सपोज 12x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर हो, इसके ऊपर भी आप लोगों का फार्मूला ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखें 12 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर का मकसद कि जिस नंबर का या जिस टर्म का हम लोग स्क्वायर रूट निकालें वो हमारा होल नंबर हो, विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट हो उसका जवाब, तो वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। तो ये स्क्वायर नहीं है। जब हम कह रहे हैं कि ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स है, एक्स स्क्वायर तो आपका स्क्वायर है बिल्कुल, लेकिन 12 इज नॉट योर स्क्वायर। 12 आप किसी भी दो नंबर सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 12 नहीं ले आ सकते। नो डाउट के -9y स्क्वायर सेकेंड टर्म आपका स्क्वायर है, तो इस कंडीशन में इसको भी आपको फिलहाल एज इट इज रखना है। यू जस्ट फोकस ऑन दीज थिंग्स कि जब हम कह रहे हैं कि टू स्क्वायर्स हैं तो सॉरी, तो टू स्क्वायर्स होने चाहिए। यहाँ 12 इज नॉट योर परफेक्ट स्क्वायर। इसको जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो अल्टीमेटली इसका जवाब 3 पॉइंट समथिंग में आएगा आपका, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो माइंड दिस थिंग कि परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन भी अगर आप लिखना चाहें, समझना चाहें, भले समझ लें, लिख लें कि परफेक्ट स्क्वायर इज दैट whose स्क्वायर रूट इज ऑलवेज विदाउट डेसिमल पॉइंट या होल नंबर, इंटीजर आएगा, उसमें कोई डेसिमल पॉइंट का नहीं होगा कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल आप 4 कह लो, 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, इस तरह से 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का 5, 36 का 6, इस तरह से आप लोग जाएंगे। तो अगर इस तरह से कोई वैल्यूज हों तो उनके ऊपर तो ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर चलेगा, लेकिन अगर कोएफिशिएंट आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो भी ये फार्मूला काम नहीं करेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स है। तो टू स्क्वायर्स का मकसद है कि दोनों टर्म स्क्वायर्स में होने चाहिए, क्योंकि ये 12 नहीं आ रहा इस ज़मरे में, उस क्वालिफिकेशन में, इस वजह से इसको हम डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर के फार्मूले से रिजॉल्व नहीं करेंगे। सो दिस इज योर फर्स्ट फार्मूला। नेक्स्ट इज योर a plus b whole square. This is called your a plus b whole square या simply whole square फार्मूला। अब मैं नीचे आप लोगों ने बेसिकली इन दोनों को अलग अलग पढ़ा है मैट्रिक 8th और मैट्रिक लेवल के अंदर, लेकिन मैं इनको अलग अलग करके नहीं पढ़ा था, मैं एक ही करके आपको दे रहा हूँ कि ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है इनके दरमियान। ठीक, ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो आप लोग बेसिकली सॉल्व कैसे करते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, और अगर a माइनस बी होल स्क्वायर है तो आप लिखते हो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नॉर्मली दिस इज व्हाट यू पीपल आर रिजॉल्विंग। अब इसको करना कैसे है मैं सिंपली आपको समझा रहा हूँ, वही राइटिंग में कि करना क्या है। आपको करना क्या है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म, तो a चाहे यहां हो चाहे यहां हो, a का स्क्वायर आपका a स्क्वायर हो जाएगा, देन कॉमा प्लस, ठीक, प्लस लगाना है, चाहे आपका प्लस हो चाहे माइनस हो, फॉरगेट अबाउट दिस वन, चाहे आपका प्लस हो चाहे आपका माइनस हो, यहां आपको प्लस लगाना है। ट्वाइस द प्रोडक्ट
of first and second term plus twice the product of first and second term. अब देखें यहाँ a और b है, twice का मकसद है multiplied by 2, तो 2 twice. फर्स्ट टर्म क्या है आपका a, सेकेंड टर्म क्या है आपका b. यहाँ प्लस भी दे रहा हूं मैं क्योंकि यहाँ प्लस मैंने लिखा है. और अगर a माइनस b है होल स्क्वायर तो वही प्लस, तो मैंने आपको फॉर्मूले में लिखवाया है ट्वाइस, वही द प्रोडक्ट का मकसद है मल्टीप्लाई करना. फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पर माइनस b, ये माइनस b यहाँ आएगा आपका. ठीक, अब अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस प्लस तो प्लस 2ab हो जाएगा जो यहाँ पर आपका आ रहा है. और अगर इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें प्लस 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 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, वही 2ab आपका आ रहा है. ठीक, देन कामा प्लस, चाहे प्लस है चाहे माइनस हो, नो इशू, अगेन वही प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म. तो सेकेंड टर्म यहां पर b है तो b का स्क्वायर हम करेंगे तो b स्क्वायर ही आएगा आपका. ठीक, b का स्क्वायर करेंगे तो आपका b स्क्वायर. और यहां आपका सेकेंड टर्म क्या है माइनस b, माइनस b का भी स्क्वायर करेंगे तो आपका प्लस आ जाएगा. वाई, ये मैंने आपको इवन और ऑड का चक्कर मैंने बताया था रेडिकल्स के अंदर. तो अगर यहाँ माइनस साइन है और पावर आपका इवन है तो आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा. तो इसीलिए क्योंकि वैसे भी अगर माइनस बी को एक्सपाउंड करें तो यानी माइनस बी इंटू माइनस बी, यानी 2 मरतबा आप लिखोगे, स्क्वायर का मकसद है माइनस माइनस प्लस बी इंटू बी, बी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा आपका, जो यहाँ पर दोनों में आपका आ रहा है. सो दिस इज योर फार्मूला नंबर 2, 3 कह लें. ये नॉर्मली आप नीचे ये 8th और मैट्रिक के अंदर अलग अलग करके पढ़ते आते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर अलग है और a माइनस बी होल स्क्वायर अलग है. तो ये बेसिक 3 फार्मूले हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होते हैं. मैं आगे क्यूब के फार्मूले हैं लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो वो मैं आप लोगों को डिस्कस करूँगा आगे चलकर. लेकिन नॉर्मली हम लोगों को क्यूब वाले फार्मूले इतने डिस्कस में नहीं आते या आगे चलकर अगर कहीं आ गए तो फिर वो उस टाइम पर मैं आप लोगों को उसके बारे में भी समझा दूंगा, नो इशू. सो होप कि यहाँ आपका फाउंडेशन सबकी ख़त्म हुई. जो मेरी कमिटमेंट थी कि मुझे आप सबको एक इक्वल स्टेटस पर लेकर आकर चलना है और सबको एक साथ यहाँ से मैं आगे की तरफ जो एडवांस टॉपिक्स आपके जो रियल बिजनेस मैथमेटिक्स के हैं वो आप लोगों को आगे चलकर मैं लेकर चलूँगा. अगर कोई भी इशू हो तो एज यूजुअली आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं MS टीम्स के ऊपर, लाइव सेशन में, यूट्यूब के ऊपर आप लोग कमेंट्स में पूछ लें क्वेश्चन या मुझे व्हाट्सएप कर दें. मैं आपको बारी बारी जो भी होगा टाइम के साथ आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा. इंशाल्लाह वी विल मीट नेक्स्ट वीक विथ नेक्स्ट लेक्चर. वो होगा हमारा इंशाल्लाह इक्वेशंस के ऊपर, सिंपल इक्वेशंस. इक्वेशन क्या है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसके रूल्स क्या हैं, वो पूरे चीज़ में आपको बता दूंगा इंशाल्लाह. इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल पहला हमारा टॉपिक होगा. इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल के जिस इक्वेशन में हमारा एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व हो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे. सो उसके बाद फिर मैं आप लोगों को फैक्टराइजेशन और बाकी के जो टॉपिक्स हैं उसकी तरफ आएंगे. होप इट विल सर्व द पर्पस. इंशाल्लाह लाइव सेशन या कोई भी इशू हुआ तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे. विल मीट नेक्स्ट टाइम. थैंक यू.